ویلکم بیک۔ شاہنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو خبر دیں گے وزیر آباد چناب ٹول پلازا سے، جہاں پر کیش اکٹھا کر کے بینک لے جانے والی کیش وین پر ڈاکوؤں نے حلہ بول دیا ہے۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے نالا پلکھو کے قریب جی ٹی روڈ پر کیش وین پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کیش وین کے ڈرائیور آفتاب، گن مین الطاف جبکہ ایک راہگیر کو گولیاں لگیں۔ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ راہگیر اسپتال میں دم توڑ گیا۔ ڈاکوؤں نے کیش وین سے 64 لاکھ روپے لوٹ لیے اور فرار ہو گئے۔ پولیس جائے وقوع پر آدھا گھنٹہ تاخیر سے پہنچی۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے نجی سیکیورٹی ایجنسی کے 2 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ قتل ہونے والے گن مین اور ڈرائیور کے نعشوں کو بھی سول اسپتال وزیر آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہارون آباد کے نواحی گاؤں کے قریب تیز رفتار رکشہ نہر میں گرنے سے 3 ماں بیٹیوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ رکشے میں خواتین اور بچوں سمیت 9 افراد سوار تھے، جن میں 5 افراد کو ریسکیو ٹیم نے بروقت آپریشن کرتے ہوئے زندہ نکال لیا، جبکہ 3 ماں بیٹیوں سمیت 4 خواتین نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں۔ ریسکیو ٹیم نے 3 جاں بحق ہونے والی خواتین کی لاشیں نہر سے نکال لی، جبکہ 14 ماہ کی آسیہ نامی معصوم بچے کی لاش کی تلاش بھی ابھی تک جاری ہے۔ پچھلے 12 گھنٹوں سے ریسکیو ٹیم آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن معصوم بچے کی لاش ابھی تک نہ مل سکی ہے۔ ریسکیو ٹیم کے مطابق جاں بحق ہونے والی خواتین کا تعلق نواحی گاؤں 281-7 سے ہے اور تمام خواتین ایک ہی گھرانے سے ہیں۔ ڈسکا گجرانوالہ روڈ نزد گلوٹھیاں موڑ مسافر رکشہ اور موٹر سائیکل میں تصادم پیش آیا ہے، جہاں پر ڈسکا گجرانوالہ روڈ گوٹھیاں موڑ کے قریب مسافر رکشے کا ایکسل ٹوٹ گیا، جس سے رکشہ بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا۔ تصادم کے نتیجے میں رکشے میں سوار 6 مسافر جبکہ موٹر سائیکل سوار ماں بیٹے سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ تمام زخمیوں کو ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کر دیا۔ ٹھٹا کے قریب قومی شاہراہ پر کراچی سے بدین جانے والی مسافر کوچ الٹ گئی ہے۔ حادثے میں کوچ میں سوار 50 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ 15 شدید زخمیوں کو سول اسپتال ٹھٹا منتقل کر دیا گیا ہے۔ دیگر کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ حادثہ انتہائی خوفناک تھا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کوچ مسافروں سے بھری ہوئی تھی کہ اچانک الٹ کر کھائی میں جا گری ہے۔ نجی کالج کے زیر اہتمام سالانہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے کثیر تعداد میں طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں بھکر سے نمائندہ میٹرو ون نیوز غلام یاسین کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب کالج انٹیلیجنس ٹیسٹ کا مقصد بکھر کے ہونہار طلبہ و طالبات کے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو باہر نکالنا، بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور ایجوکیشن کے مقابلہ جات میں بچوں کو آگے کیسے بڑھا جاتا ہے۔ یہ بات ڈائریکٹر پنجاب کالج بکھر کیمپس ملک سرور نواز پہاوڑ نے انٹیلیجنس ٹیسٹ میں شریک طلبہ و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کالج بھکر اس وقت سرگردہ ڈویژن کا نمبر 1 ادارہ ہے، اور میں یہ صرف میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ اس کے رزلٹ چیک کر سکتے ہیں، آن ریکارڈ ہیں ساری چیزیں، آن لائن ہے ساری چیزیں۔ آپ بورڈز کے رزلٹ اٹھا کے دیکھیں، لائک 2022 کے رزلٹ میں ہم نے فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر میں سرگودہ بورڈ میں 10 پوزیشنز لی ہیں، اور یہ کسی ایک ادارے کی سرگودہ بورڈ میں ہائیسٹ پوزیشنز ہیں۔ سیکنڈ ایئر کے رزلٹ میں ہماری بورڈ میں 6 پوزیشنز تھیں، ٹاپ پوزیشنز تھیں، فرسٹ ایئر میں 4 پوزیشنز تھیں، اور ایک بڑی تعداد ہے بچوں کی جو ہمارے ہائی اچیورز ہیں، جو ٹاپ سکورر ہیں۔ پورے بھکر سے جتنے بھی بچے میڈیکل کالجز میں جا رہے ہیں، آپ ان کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں، ہر سال مور دین 50% ان میں سے ان کا تعلق پنجاب کالج سے ہوتا ہے۔ تو مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ جب یہ بچے ہمارے یہاں گیدرنگ ہوئی تھی اور میں ان سے بات چیت کر رہا تھا، تو ہمارے اولڈ پنجابینز، وہ بچے جو اس وقت میڈیکل کالجز سے اپنا MBBS کمپلیٹ کر کے آ چکے ہوئے ہیں، جو ڈیفرنٹ اداروں میں ایز اے لیکچرر سرو کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ موجود تھے۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پنجاب کالج بکھر ایجوکیشن کے میدان میں ہر سال پہلے سے زیادہ سرگودہ بورڈ میں پوزیشن حاصل کر رہا ہے، جس پر پنجاب کالج بکھر کا پورا سٹاف خراج تحسین کا مستحق ہے۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ غلام یاسین کوکھر، میٹرو ون نیوز بکھر۔
मामू कांचन पुलिस ने 8 माह कबल खातून को कत्ल करने वाले मुलजिम इलाका थाना समंदरी से गिरफ्तार कर लिया है। मकामी पुलिस ने लाश अपने कब्जे में लेकर मुलजिम की तलाश शुरू कर रखी थी, जिसे गुज़श्ता रोज़ SHO राना असगर और ASI अशरफ डेयर ने थाना समंदरी के इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने अपने हकीकी भाई अजहर को भी कत्ल करके लाश ज़मीन में दबा दी थी। गिरफ्तार मुलजिम की तफ्तीश की जा रही है। SHO थाना जतोई की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिले में SHO थाना जतोई असमत अब्बास ने मनशात फरोश से 300 ग्राम हेरोइन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। SHO असमत अब्बास का कहना था कि जराइम पेशा अनासर इलाके में नासूर हैं। पुलिस उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। पुलिस आवाम की जान और माल और इज्जत की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है और 24 घंटे अलर्ट है। पाकपतन के नवाही इलाके चौक मरला में मुसल्लह डाकुओं और खारादर ज़रई अदवात की शॉप से नकदी लूटकर फरार हो गए हैं। पाकपतन के नवाही इलाके चौक मरला में चोरी की बड़ी वारदात। मुसल्लह डाकू खाद की दुकान से लाखों रुपए नकदी ले उड़े हैं। CCTV फुटेज मेट्रो पर न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकुओं ने किस तरह दुकानदार को यरगमाल बनाकर सामान लूट लिया। पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। कश्मीर इंडस हाईवे पर ड्राइवर और कंडक्टर को अगवा कर लिया गया है, जबकि 25 से ज़ायद मुसल्लह डाकुओं की गाड़ियों पर फायरिंग से कश्मीर से मरीद शाख की तरफ जाने वाले डंपर का कंडक्टर जख्मी हो गया। इसके साथ ही डाकू घोटकी के इलाके शम्स छपरी के रिहायशी ड्राइवर हुजूर बख्श और गिरगेज कैलेंडर वहाब गिरगेज को अगवा करके ले गए हैं। मुखबियों के वर्षा ने कश्मीर इंडस हाईवे जाए वक़ुआ पर रोड पर डंपर खड़ा करके रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। रोड ब्लॉक होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन ने मुकामी MNA, मुकामी MPA, मुकामी सरदारों से मुतालबा किया है कि मुखबियों की बाजियाबी के लिए मदद की जाए। पुलिस स्टेशन मैकलोडगंज से कुछ ही फासले पर चोरों ने किरियाने की दुकान का सफाया कर दिया है और लाखों रुपए मालियत का माल लूट कर फरार हो गए हैं। रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए मुलजिमान। इससे कबल भी थाने के करीब मुतादिद वारदातें हो चुकी हैं, मगर पुलिस अभी तक ट्रेस करने में नाकाम नजर आ रही है। मकामी पुलिस थाना मैकलोडगंज चोरों के सामने खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों ने DPO भावलनगर और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मकामी पुलिस फिलफौर चोरों का सुराग लगाए और अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। सादिकाबाद से आपको खबर देंगे, जहां पर पुलिस ने कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन 24वें रोज भी जारी रखा हुआ है। ऑपरेशन में जराइम पेशा अफराद के खुफिया ठिकाने मस्मार कर दिए गए हैं, जबकि 28 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है। लठानी गैंग के मजीद 3 खुफिया ठिकाने मस्मार करके नजर आतिश कर दिए गए हैं। पुलिस ने सजावल लठानी, सब्ज लठानी, साईं दाऊद लठानी के खुफिया ठिकानों का कंट्रोल संभाल लिया है। पुलिस ने कच्चे का वसी इलाका डाकुओं से पाक कर दिया है। बड़ी तादाद में भारी असलहा भी बरामद कर लिया है। और अब आपको बताते हैं कि ओडरवाल चौक में नामालूम अफराद की फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया और एक शख्स जख्मी हो गया। मकतूल दोस्त के हमरा कचहरी से वापस आ रहा था कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में रिक्शा ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि रिक्शे में सवार दूसरे नौजवान फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गया। वजह अनाज ज़मीन का तनाज़ा बताया जाता है। रेस्क्यूअर्स ने मौके पर पहुंचकर लाश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दी है। गढ़ई हसन में डकैती की कोशिश मज़ाहमत पर मुसल्लह अफराद जख्मी हो गए हैं। गढ़ई हसन थाने के करीब डकैती की कोशिश में मज़ाहमत पर मुसल्लह अफराद ने महबूब कंडरानी को जख्मी कर दिया। चोर फरार होने में कामयाब हो गए और पुलिस इत्तला के बाद मौके पर नहीं पहुंची। इलाके मकीनों का कहना है कि चोरी डकैती रोज़ का मामूल बन चुका है। चिश्तियाँ के नवाही इलाके इकबाल नगर में 9 साला बच्चे के चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया गया। मुतासरा बच्चे को रेस्क्यू टीमों ने तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल चिश्तियाँ मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब थाना सिटी B डिवीज़न में बरवक्त कार्रवाई करते हुए तेज़ाब गर्दी के मुलजिम को फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। SHO थाना सिटी B डिवीज़न
फरियाद हुसैन ने कहा कि DPO भावल नगर के अहकामात की रोशनी में इस तेज़ाब गर्दी के वाक़े में मुलव्वस मुलजिम की मेरिट पर तफ्तीश करते हुए मुलजिम को करार वाक़े सज़ा दिलाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। और खबर सियालकोट से, जहां पर ख्वाजा सफदर रोड पर नाले की खुदाई के दौरान एक दिन की नामौलूद बच्ची की लाश बरामद कर ली गई है। लाश को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। DPO सियालकोट का कहना है कि तमाम अस्पतालों के रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे और उन जालिम सफाक दरिंदों को निशान इबरत बनाया जाएगा। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लाड़काना की तहसील रत्तोडेरो में म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की जानिब से कुत्ता मार मुहिम ना चलाने के बायस पागल कुत्ते ने एक और बच्चे को नोच डाला है। नाक और होंठ शदीद मुतासिर हो गए। इसी हवाले से मजीद देखिए सलीम रजा की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, मौजूदा वजीर खारजा और रत्तोडेरो के मुंतखब नुमाइंदे MNA बिलावल भुट्टो जरदारी के अपने हल्का में म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की नाअहली बरकरार है। कुत्ता मार मुहिम का आगाज ना करने के बायस मजीद एक और 8 साला बच्चा यासिर अली पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें बच्चे का नाक, होंठ और कान बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिसको तशवीशनाक हालत में तहसील के सबसे बड़े अस्पताल रत्तोडेरो में लाया गया, जहां पर कोई भी सहूलियात, फर्स्ट एड और वैक्सीन मुयस्सर ना होने की वजह से जख्मी बच्चे को सरकारी एम्बुलेंस में लाड़काना रेफर तो किया गया, मगर मुतासरीन से किराया भी लिया गया, जहां पर बच्चे की हालत गैर होने पर डॉक्टर की जानिब से कराची से सर्जरी कराने का मशवरा भी दिया गया है। मेरा बच्चा 8 साल का है, छोटा बच्चा है मेरा। ये घर से निकला शे लेने के लिए, उस पागल कुत्ता था वो सामने आ रहा था, उसने उसको बहुत नोचा है, नाक, कान और होंठों को नीचा है, बहुत जख्मी हुआ है। हम लाड़काने ले गए, लाड़काने वाले उसने बोला कि कराची ले जाओ सर। मजीद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जिला लाड़काना के तहसील रत्तोडेरो के मुंतखब नुमाइंदों MPA फरियाल टालपुर, MNA बिलावल भुट्टो जरदारी और आला हुकाम से नोटिस लेकर बच्चे का सरकारी इलाज करवाने की अपील करते हुए म्यूनसिपल कमेटी और तहसील अस्पताल रत्तोडेरो की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया है। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। आरिफवाला में गंदम खरीदारी के हदफ को पूरा करने के लिए गंदम जखीरा अंदोजों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऐसे में इंतजामिया ने मुख्तलिफ देहात में छापा मार कर गंदम की 10,000 बोरियों को बरामद कर लिया है। छापामार टीम ने पकड़ी गई गंदम महकमा खुराक के हवाले कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मलिक अफजल के मुताबिक गंदम की जखीरा अंदोजी के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गंदम जखीरा करने वालों की किसी सूरत में रियायत नहीं दी जाएगी। शहनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें अहमदपुर सियाल से, जहां पर गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर तहसीलदार मोहम्मद इकबाल की जानिब से मौजा सधाना में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर जखीरा की गई गंदम के 25,000 बैग बरामद करके तमाम बैग्स को तहवील में लेकर सरकारी गोदाम में मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से तहसील इंतजामिया का कहना है कि गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। और अब आपको बताते हैं कि सिलसिला वेसिया नक्शबंदिया की फलाही तंजीम के अहदेदारान की तकरीब हल्फबरदारी का इनेकाद किया गया। डॉक्टर नवीद आसिफ यूसुफी सदर मुंतखब हो गए। मज़ीद देखिए हमारे नुमाइंदे शेख रमज़ान नदीम की ये रिपोर्ट। सिलसिला अवैसिया नक्शबंदिया के ज़ेरे एहतमाम चलने वाली फलाही तंजीम अल फलाह फाउंडेशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान डेरा गाजी खान डिवीज़न के अहदेदारान की तकरीब हल्फबरदारी का इनेकाद किया गया। नौमुंतखब अहदेदारान से कारी सैफुल्लाह ने हल्फ लिया। इस मौका पर डिवीजनल सदर डॉक्टर नवीद आसिफ यूसुफी ने खिताब करते हुए कहा कि हम अपने अमीर अब्दुल कदीर अमान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी। इंशाअल्लाह हम आवाम की फलाह के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। अल फलाह फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मुस्तहिक नादार लोगों का फ्री इलाज व मुआवजा किया जाता है। रिपोर्ट शेख रमज़ान नदीम, डेरा गाजी खान।
पंजाब के दूसरे शहरों की तरह तलम्बा में भी दमा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजीद जानते हैं राना आजम से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ रूरल हेल्थ सेंटर तलम्बा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है SMO डॉक्टर आसिफ इमाम। आइए इनसे जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज दमा का दिन मनाया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, जो दमा के मरीज़ हैं उनके बारे में आप क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? आज 2 मई पूरी दुनिया में दमा का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस दिन के सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि लोगों को आगाही मुहैया की जाए कि वो कौन से अवामिल, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर अमल दरामद हम करें तो दमा की शिद्दत और दमा की बीमारी से काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो इसकी जो एहतियाती तदाबीर है, जो मरीज़ है दमा के, क्या क्या एहतियात करना चाहिए उनको? उसमें वो ये है कि जिन जिन अवामिल से उनको दमा ज़्यादा हो रहा है उन चीज़ों से एहतियात करें। मिसाल के तौर पर जिन पेशेंट को एक्सरसाइज से दमा ज़्यादा होता है तो वो एक्सरसाइज कम करें और अपने डॉक्टर से उसके मुताबिक अद्वियात तजवीज़ करें। कुछ लोगों को अद्वियात से होता है जिस तरह डिस्प्रिन हो गई या दिल की धड़कन की गोली इंडराल हो गई, उसकी वजह से दमा की शिद्दत में इजाफा हो जाता है तो उससे परहेज़ करें। कुछ लोगों को मौसमी तब्दीलियों से हो जाता है जिस तरह स्मोक हो गया, थ्रेशर का धुआं वगैरह हो गया। इस तरह के अगर मसाइल आ रहे हैं तो वो उनके लिए मास्क का इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से हो जाता है, अगर मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से होता है तो उसके लिए आप एक डायरी पे एक लिस्ट बनाएं और अपने मुतल्लिका डॉक्टर से रुजू करें। और जो मेन हमारे पास काज आ रहा है दमा के जो केसेस हैं उनके बढ़ने की और दमा की शिद्दत बढ़ने की, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और शहरी आबादी है जिसकी वजह से फ़िज़ा ज़्यादा आलूद हो रही है और उसकी वजह से दमा के केसेस भी बढ़ रहे हैं और दमा की शिद्दत में इजाफा भी हो रहा है। जी बिल्कुल, जो हमारी SMO डॉक्टर आसिफ इमाम साहब से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जो दमा के मरीज़ हैं एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जो मसलन ये जो थ्रेशर का घट्टा हो गया और ट्रैफिक का धुआं, इससे परहेज़ करें। कैमरा टीम के साथ राना आज़म, मेट्रो 1 न्यूज़ तलम्बा। वज़ीर आला सिंध के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए महकमा बहाली ख़ुसूसी अफराद सादिक अली मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत आवाम को पीने के पानी की फराहमी समेत तमाम मतलूबा बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशा है। ठट्टा के शहरी और देहाती इलाकों में पानी की कमी और बाराबंदी के मसले को मद्देनज़र रखते हुए दरबार हॉल मकली में एक अहम हंगामी इजलास की सदारत करते हुए उनका कहना था कि इस मामले में किसी भी किस्म की गफलत और कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सादिक अली मेमन और सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी ने आपाशी और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान को सख्ती से हिदायत की कि वो फौरी तौर पर पानी की फराहमी को बिला तातुल यकीनी बनाकर आवाम को परेशानी से बचाएं। मीरपुर खास में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। एहतजाजी मुजाहरे में कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहरे की क़यादत ज़िला सदर आफ्ताब कुरैशी और सिटी सदर तौसीफ रजा मलिक ने की, जिसमें ज़िला जनरल सेक्रेटरीज अजीज़ लागारी, ख़वातीन विंग की सेक्रेटरी कमल रंधावा, ज़िला नायब सदर इरफान शेख, टाउन सदर फैसल खान जई और दीगर रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। PTI रहनुमाओं ने अदलिया से मुतालबा किया कि मुल्क में आइन की पासदारी के लिए फौरी इलेक्शन करवाए जाए। मई लेबर डे के हवाले से सियालकोट में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का इनेकाद पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन पंजाब के सदर चौधरी अशरफ, जॉइंट सेक्रेटरी आसिफ खान, नायब सदर नाजिया कंवल, नायब सदर लाला मंजूर, वाइस चेयरमैन अमजद अब्बास ने किया, जिसमें मुकर्रीन ने सियालकोट लेबर के दरीना मसाइल, सरकार की जानिब से मुकर्रर करदा तनख्वाह पर अमल दरामद, महकमा सोशल सिक्योरिटी, अस्पताल के अमले और अद्वियात के हसूल को यकीनी बनाना और ओल्ड बेनिफिट से मुतालिक मसाइल के बारे में आगाह किया गया और पंजाब हुकूमत से इन दरीना मसाइल को फौरी तौर पर हल करवाने का मुतालबा भी किया। मजदूर रहनुमाओं और आज हमने यहाँ पे कुछ मजदूर रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा किया था ताकि हम 1 मई के हवाले से जो योम मजदूरों की एक इम्पोर्टेंस है उसको उजागर किया जा सके। तमाम दोस्तों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और यकीनन एक बात जो काबिल मुश्तरक थी तमाम लोगों में कि हमारा जो मज़दूर है उसको उसका ड्यू राइट नहीं मिल रहा। तो हमें सबको मिलके इस पे काम करने की ज़रूरत है। सोसाइटी की एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए ताकि तमाम हलकों को उनके जायज़ हकूक़ मिल सके।
ظاہر پیر میں صوفی بزرگ حضرت شیخ عبدالستار کی دربار پر سالانہ عرس و ثقافتی میلہ عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عرس پر علماء کرام، کاروباری شخصیات اور لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت کی رپورٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر پیر سے انتظار اکرم واہگہ۔ حضرت شیخ عبدالستار کا سالانہ عرس و ثقافتی میلہ بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ پاکستان بھر سے زائرین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ میلہ شیخ عبدالستار پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً 200 سال پرانا میلہ ہے جسے ہمارے علاقے کی ثقافت میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ لوگ یہاں عقیدت کے طور پر جو اس دربار سے عقیدت رکھتے ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اصولی طور پر جب یہ گندم کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے اور اس کو کاٹا جاتا ہے تو لوگ خوشی کے طور پر یہ ثقافتی میلہ مناتے ہیں۔ اس پر آنے والے عقیدت مند دربار پر درود و سلام پیش کرتے رہے۔ ثنا خان نے نعتیہ کلام پڑھ کر محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ علی یا ولی اے حسین ابن علی، دین بچاواں والا، دین اسلام تو سات کہاواں والا، اے حسین ابن علی، دین بچاواں والا۔ انتظامیہ کی طرف سے میلے پر آنے والوں کی تفریح کے لیے جھولوں کا انتظام، کبڈی کا میچ اور لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ انتظار اکرم واگہ، میٹرو ون نیوز، ظاہر پیر۔ شہرنامے سے فی الحال اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔